गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू आवर 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जितने लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का खास स्वागत है। दूसरी चीज़, एक काम करिएगा कि जिस भी टेलीग्राम ग्रुप का आप हिस्सा हैं, जल्दी से सेशन को वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा गाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये कि इंग्लिश आती बहुत सारे लोगों को है। अ लॉट ऑफ पीपल नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, दैट्स द होल जॉब। वहाँ जाकर के बहुत सारे लोग झिझकते हैं, शर्माते हैं, बोलते नहीं हैं, ऑकवर्ड हो जाएंगे। एंड द वर्स्ट दैट कुड हैपन टू अ पर्सन इज कि गलत बोलने लगते हैं बिकॉज दे आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर, जो कि वो खुद बेसिकली बिल्डअप करते हैं। बट करते हैं तो करते हैं, ठीक है यार भाई, बस कर दो। 1 second. राइट, सो आई सी राइज एंड शाइन, पायल, अब्दुल, जैनब, किशोर, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, प्लीज़ एक बार जल्दी से गाइस सेशन को शेयर करें। और मुझे मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि आप में से कितने लोग, हाउ मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? So Neha Prasad, the session is going to start very soon, but today this is just a general session wherein we are going to talk about the books that you can refer to, the songs that you can listen to, probably there are some movies that you can watch and learn good English from. So English, first of all, is not only about particularly spoken English, ठीक है? So when you talk about spoken English, this is not all about grammar. Trust me, when you speak in English, 80 to 85% of the public out there is making grammatical errors and they do not even know about it. And जो बच्चे खुचे आपके 15% होते हैं, वो या तो English faculties होते हैं या तो they are very interested in English language. All right? Thinking in English says Anusha, but how do you think in English when you don't know how to speak in English? तो फिर जो आप सोचेंगे वो भी गलत हो जाएगा, isn't it? Prasenjit says he can write very well. You don't write fluently, you speak fluently with a good flow. Fluently comes from flow. ठीक है? So you can speak fluently. That is one thing. All right. Prajwal Sharma, good evening. Hi, hello, welcome everybody. Okay. Good evening, Japneet. Now I just have asked one question. How many of you can actually speak fluently in English? If I right now give you a call, would you be able to speak fluently in English? I'm pretty sure you wouldn't. Yeah, to see. Suneha Prasad, you're such a nice student, yeah. Thank you. How have you been? Very good to see that. See, that is the whole point. Now when I see that a lot of my students, they greet me in appropriate words, correct greetings hoti hain unki, that makes me happy. A lot of times people will just come and say hey, but is it okay to say hey in a lot of situations? Should you say that? And you know, there are people, when you go to speak to them, you are actually very excited that I'm going to talk to this person and I have so many good ideas, I'm going to share all those ideas. But when you actually enter the cabin or when you are actually face to face with them, you stutter, you हिचकिचाते हैं, आप हकलाने लगते हैं. And why does that happen? कभी सोचा है? I'll tell you what are some of the most basic things that you can actually do. And I'm not saying that you're going to be fluent in English in next 1 hour, or I'm not going to say that you're going to be fluent in English in next 1 month or 2 months. That doesn't happen. Okay? There is nothing magical being promised here. But yes, you will be able to, you know, develop that interest in English. You will be able to frame correct sentences in English. देखिए, इंग्लिश आना और सही इंग्लिश बोल पाना, ये दो बहुत अलग चीज़ें होती हैं. और इसके लिए जो पहला रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से होता है वो ये है कि जैसे अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा है रोजाना, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे बोलते हैं, रोजाना. आप लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना? तो इसमें ये जो नुक्ता होता है, ये जो नीचे एक छोटी सी मात्रा लगती है, जब नुक्ता बोलते हैं, इसका जो रोल होता है उसको 80% भारतीय
भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ROJANA को रोजाना बोलेंगे तो वो गलत होगा, राइट? वैसे ही अगर आप ये नुक्ता वाले जा को जा बोलेंगे और जा नहीं तो वो भी गलत होगा। सो व्हाट यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज, यू हैव टू कॉल इट रोजाना। ठीक है। अच्छा, अब कैजुअल को बहुत सारे लोग कैजुअल बोलते हैं, कैजुअल बोल लो वो चलता है मेरे को, पर व्हाट इज कैजुअल? कैजुअल कौन बोलता? नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जो बोलते हैं वो शायद उनको पता नहीं है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं दे आर ओके विद इट, वो कहते हैं चलो जो बोल लेते हैं वही बहुत है, राइट? ये भी एक फंडा होता है लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच कम्स while we are learning how to speak fluently in English, हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होने वाली है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। बहुत अपने आप को स्मार्ट समझने वाले लोग होते हैं जो इस वर्ड को क्लीश बोलते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, इसके ऊपर ये छोटा सा एक हमने हलंत लगाया, ये आपके कुछ साइंस होते हैं गाइस। 1 सेकेंड। हाँ जी, राइट। सो ये क्लीश नहीं होता है, दिस इज क्लीशे। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शे, क्लीशे, और च नहीं। यहाँ पर आप हार्ड साउंड नहीं प्रोनाउंस करेंगे CH का, आप सॉफ्ट साउंड प्रोनाउंस करेंगे। यू विल कॉल इट क्लीशे। अच्छा, बहुत बड़े शब्दों पर जाने से पहले हम ये वर्ड लेते हैं। इसको कितने लोग वाट बोलते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। आई डोंट मीन टू लाफ, आई स्वेयर, बट जब मैं ऐसे बोलती हूँ तो अपने ऊपर मुझे हंसी आती है, और बहुत सारे लोग एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, बट दैट डजंट मेक इट करेक्ट। अगर आप वाट बोल रहे हैं और सामने वाला वॉट बोल रहा है, जाहिर बात है कि आप वहाँ ऑकवर्ड हो जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या ये सही बोल रही है, गलत क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ वेयर आप क्या हो जाते हैं, यू गेट कोल्ड फीट, आपको डर लग जाता है और आपकी जो बोलने की क्षमता है वो बाय से 100 कम हो जाती है, मतलब 100 गुना कम, यानी कि बिल्कुल बेकार प्रदर्शन। सो वाट नहीं होता है, या फिर वाट, आई हैव हर्ड पीपल प्रोनाउंसिंग इट एज वाट एज वेल। What is that? That's not correct. H आता है, but that's not an audible sound. It is only pronounced as what. कितने watt का बल्ब है? वो जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट होता है, बल्ब वगैरह का जो यूनिट होता है, उसको आप वॉट बोलते हैं, राइट? तो वही वाला प्रोनाउंसिएशन लगाए ना, वहाँ भी लोग वाट बता देते हैं, तो वाट लग जाती है प्रोनाउंसिएशन की इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ आपसे वॉट इज योर नेम, अब ये बहुत छोटी सी लाइन है जिसको बहुत सारे लोग सही बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम सब बोल लेते हैं, बट व्हाट इज योर नेम और व्हाट इज योर नेम, इसमें कितना अंतर है? डू यू सी कि आपको व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर आपने आर को चुप कराया है, ये इज को थोड़ा सा ज़्यादा घुमाया है। सो ये जो सबसे पहला स्टेप होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ बेसिकली ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। आप कैसे अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं? आप पूरा दिन यूट्यूब पर वेस्ट करते हैं, राइट? आप बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं, राइट? आपका जो PUBG चलता है, आई बिलीव उसमें भी पीछे से कुछ कुछ कमेंट्री होती रहती है, बट फिर भी आपको कमेंट बोलना होता है, राइट? बट ये क्या है? ये कॉमेंट है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज कॉमेंट। मैडम जी कमेंट कहाँ करें? तो बेटा कमेंट नहीं करेंगे, कॉमेंट करेंगे, राइट? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिट अबाउट दिस थिंग कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम की जगह व्हाट्स योर नेम, वेरी गुड जॉब। हु वाज दैट पर्सन? कोई किसी ने लिखा था यार यहाँ पे, बलराम कुमार साहू, बहुत शानदार। तो बिल्कुल जब आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस पर ध्यान दो, बहुत जार्गन्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी भाषा हमेशा आपको एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करती है। इफ़ यू आर टॉकिंग इन हिंदी, इफ़ यू आर टॉकिंग इन बंगाली, पर आपका प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, अगर आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, यानी कि आपका जो उच्चारण है दैट इज़ नॉट शुद्ध, वो भी गलत साउंड करता है, तो यहाँ पर हमें जैसे शुद्ध को मैं शुद्ध बोलूँ, जैसे बहुत सारे लोग, मेरा नाम उदिशा है पर क्या बोलते हैं? उदिशा बोलते हैं।
ये उनकी कमज़ोरी हो सकती है, बट ये ऐसी कमज़ोरी नहीं होती है जिसे वो दूर नहीं कर सकते हैं. देर आर डेफिनेटली मेडिकल कंडीशंस जहाँ पर आपको नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ कंडीशंस होती है कि देयर टंग फंक्शंस इन अ पर्टिकुलर मैनर, और उसकी वजह से वो लिमिट हो जाता है उनका कुछ शब्दों को प्रोनाउंस करने का की एबिलिटी. लेकिन जिन लोगों के पास कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो फिर आप इस तरह से कंडीशन को कंडीशन ना बोलें. कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है, राइट. बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों का मैं एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर. और कई बार लोग ज़्यादा पॉलिश्ड बनते हैं, तो कैशी हो तो ये भी, आई मीन हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस. देखें, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. बहुत ज़्यादा बार लोग कैसी हो को कैशी हो बोलते हैं, एंड दैट इज़ फनी. लाइक हाउ डू यू नॉट लाफ? इस पे हंसी कैसे नहीं आती? सरताज, बहुत दिनों बाद आप क्लास में आए हैं. कुलदीप कुमार, हाय, वेलकम. सो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही बताऊंगी कि जब आप बात करते हैं अंग्रेज़ी अच्छी बोलने की, तो अंग्रेज़ी अच्छी बोलने के लिए आपके बोलने का सलीका कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर दोज थिंग्स जो आप अकेले अपने आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश. बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था पिछले बैच में कि मैडम किसके साथ प्रैक्टिस करें, कोई है नहीं साथ में. ओके तो खैर, कौन सा पार्ट है मैम? दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर या सेशन या फिर लेक्चर आप बोल सकते हैं. वी ऑल लिव इन अ वेरी वियर्ड वर्ल्ड. डेफिनेटली बहुत ही वियर्ड है हमारा वर्ल्ड. लेकिन ओके, बजरंगी यादव, यूर अ न्यू स्टूडेंट, नाइस टू हैव यू हियर. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप सबको बता दें कि बहुत जल्द आरा 24/7 लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस. ठीक है, सो यहाँ पर आपको अपनी बोली जाने वाली इंग्लिश सुधारने का मौका मिलेगा. जितने लोग एम्प्लॉयड हैं, जो लोग कभी एम्प्लॉयड होने वाले हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, या फिर जिन लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना है और उन्हें लगता है कि कम्युनिकेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ हिंड्रेंस, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं. जी हाँ, अपने आप कैसे खुद अपनी मदद से ये चीज़ें कर सकते हैं. नंबर 1, शीशा सबके घर में है. एवरीबडी हैज़ अ मिरर. अब्दुल रहीम, दिस इज नॉट द फर्स्ट क्लास, दिस इज जस्ट द अनाउंसमेंट क्लास. ठीक है, जल्दी से बताइए कि शीशा सबके पास है, राइट. इफ़ आई टेल यू कि शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो शीशे के अंदर आपको एक ऐसा इंसान दिखेगा जो कि एक्चुअली आपके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार है. नंबर 2, वो आपसे वैसे ही बात करेगा जैसे आप उससे बात कर रहे हैं. सो ये जो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं बिकॉज सामने वाला बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि वो बेचारा आपके जैसे ही बात करेगा. So you just have to go to the mirror and speak to yourself in the mirror. छोटे छोटे सेंटेंसेस को, सिर्फ इतना, हाय, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आज आप कैसे हैं, ये पूछा है आपने अभी अभी, फिर आप उसे जवाब देंगे. और इस तरह से आप धीरे धीरे एटलीस्ट अपने लिए इतना कर सकते हैं कि हाँ, आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने लगेंगे स्लोली. बिकॉज व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? आप डरते हैं, देर इज दिस फियर, यू आर स्कैर्ड कि यार ये गलत है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत, भले वो सही हो, बट यू आर स्कैर्ड. एंड यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि 10 दिन कोई हंसेगा, 10वें दिन अगर मैं अभी इस वक्त आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की जो सबसे, सिवाय आपके, अपनी ज़िंदगी की सबसे एम्बैरेसिंग घटना बताइए. डू यू रिमेंबर? वो आपको याद होगी घटना, बट वो किसी और को याद नहीं होगी. एंड अनलेस यू वांट टू गो एंड रिमाइंड देम कि भाई देखो हमने बहुत बचपन में ये शर्मिंदगी वाला काम किया था, किसी और को याद नहीं रहता है. ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एम्बैरेसिंग सिचुएशंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग्स जहाँ पे कोई क्राइम हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, मनोरंजन, good attempt.
राइट, सो आई थिंक अगर आप अपने आप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप अपने साथ प्रैक्टिस करें, अगर आपके पास आपका कोई सिबलिंग है या आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस करें, या फिर जैसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे स्टूडेंट्स ने क्या तैयार किया कि वो जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल थे उन्होंने उनके साथ ग्रुप बना लिया और फिर वो उनसे वीडियोज़ पे बात करने लगे. गर्ल्स डिड अ सेपरेट ग्रुप एंड बॉयज़ डिड अ सेपरेट ग्रुप फॉर देमसेल्व्स. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. So, find yourself a person who you are comfortable with, but a lot of times people don't have that person. Right, now I'll tell you, sing along English songs. तो English songs सुनते हैं आप लोग. For example, Eeny Meeny Miny Mo, Catch a Bad Chick by Her Toe. Now ये मैंने जल्दी जल्दी भी बोला है और बिल्कुल सही भी बोला है. ये जस्टिन बीबर का बड़ा पुराना गाना है, लेकिन just for example मैं I don't, okay, खैर, तो यहाँ पर इनी मीनी माइनी मो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है. ये पुराने वहाँ पे ही अंग्रेजी में बच्चों के कुछ कुछ, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है वो जॉनी जॉनी यस पापा, उसी टाइप का एक इनफॉर्मल सा अंग्रेजी का राइम टाइप है, ठीक है. तो इन्होंने इसको ऐसे गाने में बना दिया. अब आप क्या शुरू करेंगे, पहले गाना शुरू करेंगे. यू विल लिसन टू द म्यूजिक राइट नाउ. आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, सिर्फ गाने के साथ गाना है. धीरे धीरे आप यहाँ से सीखेंगे डेली यूज के लिए आने वाले या डेली यूज में आने वाले फ्रेजेस या फिर नए शब्द सीखेंगे. अब कैच अ बैड चिक बाय हर टो, टो का क्या मतलब होता है, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप गूगल करेंगे, उसका मीनिंग ढूंढेंगे. सो दिस इज अनदर वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश. नाउ आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल. पहले यहाँ पर देखेंगे एक छोटी सी एग्जाम्पल. When you try your best but you don't succeed, इसका क्या मतलब होता है? What do you mean by this? When you try your best but you don't succeed. शारद यूट्यूब पे जितनी, शारदा, आई एम सो सॉरी, शारदा यूट्यूब पर जितनी क्लासेस होती हैं सारी फ्री होती हैं. सो ये जो आपका सेंटेंस है इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएं. It is very effective, आयुष कुमार गुप्ता. When you try your best but you don't succeed. क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसा गाना सुना है या ये कभी महसूस किया है कि आपने अपना बेस्ट एफर्ट रखा बट फिर भी आपको सफलता हासिल नहीं हुई? Nobody knows the translation for this. When you try your best but you don't succeed. This is an English song which I really sang in a very bad manner because I'm not supposed to be singing in the class. खैर, इसका ट्रांसलेशन है, जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती या आप सफल नहीं होते, ठीक है. यस, और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स अग्री करेंगे. व्हेन यू ट्राई योर बेस्ट बट यू डोंट सक्सीड. मैं ये लाइन बोलने चलती हूँ, मुझे लगता है गा दो. सो जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ, अब ये आप सीख चुके हैं ये लाइन, ठीक है, कि हम तो अक्सर ही सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं बट सफल नहीं होते हैं, ऐसा हमें लगता है, ठीक. नेक्स्ट देखेंगे, when you get what you want but not what you need. अब आप इसकी डेप्थ देखिए. यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि जो आपको चाहिए होता है वो मिल जाता है पर जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको नहीं मिलता है, राइट. जैसे आपको चाहिए क्या, कोका कोला, पर ज़रूरत किसकी है, पानी की. सो नीड इज़ इंटेंस. नीड यानी कि ज़रूरत है वो आपकी आवश्यकता है. जो आपको चाहिए वो तो मिल जा रहा है कि कोका कोला मिल गया, फ्रूटी मिल गया, सब मिल गया, बट प्यास किस चीज़ की लगी है, पानी की प्यास है और वो नहीं मिल रहा है. ये सिचुएशन होती है हमारे पास. तो जब आपको वो मिले जो आप चाहते हैं लेकिन वो नहीं जिसकी आपको आवश्यकता है. दिस इज अनदर लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग, ठीक है, ये लिरिक्स है एक गाने की. When you feel so tired but you can't sleep. ये हम सब के साथ होता है. जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना, जब हम बिल्कुल हारा हुआ महसूस करते हैं या हमारे कुछ बहुत ख़राब हो रहा होता है, तो हम कितने भी थके हुए होते हैं ना, नींद नहीं आती है बिकॉज दोज थॉट्स आर हॉन्टिंग यू इन द हेड, है ना. ये उस दिन के लिए है. व्हेन यू फील सो टायर्ड, जब आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे होते हैं बट यू कांट स्लीप. क्या लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कभी? और अगर नहीं किया है तो बेटा सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो. जब आप इतना थका हुआ महसूस करते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपको अगले दिन की चिंता होती है कि यार ये सही हो रहा है या नहीं, क्या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, राइट. सो ये जितनी आपकी लाइनें हैं जो मैंने आपको अभी अभी ट्रांसलेट की है, ये सारी आप गा करके सुन सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी आवाज़ में. आप सबने बैंड का नाम सुना है, कोल्ड प्ले.
ये उसका गाना है, बहुत ही पॉपुलर है, फिक्स यू। ठीक है, इसको आप सुनेंगे एंड this kind of calm and peace that this song brings to you is like, it is extraordinary, right? So when you say, ये आपसे बात कर रहा है ये गाना और आप वो समझ रहे हैं, और जब कोई आपके साथ सिंपथाइज करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट? आयुष कुमार गुप्ता गाना सुनने हैं बेटा, घर जाइए। ओहो, सरताज हुसैन, प्लीज़ बार बार एक कमेंट ना लिखें। और दूसरी चीज़, आपसे ये जो सेशन है इसका टाइमिंग और एवरीथिंग बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना। अभी अभी मैंने आपको एक सॉन्ग का एग्जाम्पल दिया, राइट? अब आपको बताना है प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर। जैसे मैंने आपको बोला था इनी मीनी माइनी मो कैच अ बैचिक बाय हर टो, ये बहुत जल्दी से आपने बोला था, दिस इज नॉट रियली अ टंग ट्विस्टर, बट आप कहते हैं ना कि हाउ डू यू स्पीक सो फास्ट, हाउ डू यू कीप गेटिंग द वर्ड्स दैट यू वांट टू स्पीक इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज व्हाट यूजुअली हैपेंस विद माय स्टूडेंट्स इज दैट दे आर एट अ लैक ऑफ और एट अ लॉस ऑफ vocabulary, they forget what can they probably speak, or whenever you are actually forgetting, you don't know what you can actually do to distract your audience in order to hide that you actually just had or experienced a lack of vocabulary, right? A loss of vocabulary. Now itna sara kuch English mein bola, I don't know how much of it did you actually understand, but what I was trying to say was कि टंग ट्विस्टर आपको जल्दी जल्दी बोलना सिखाते हैं, वो बेटी बटर वाला कर लेना, और हिंदी मत करना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ मत करना। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स, ऑलराइट? एकता शर्मा, वेरी नाइस टू सी यू अगेन। Pramod Meena, Pratik Kohar is one of my favorite singers, but I'm talking about English songs and he also sings English songs, so you can listen to Cold Mess and everything else, but यहाँ पर हम टंग ट्विस्टर्स की बात कर रहे हैं। आज मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि मैडम जब बात करते हैं किसी से तो समझ नहीं आता है कि कौन से शब्द कब बोलें, भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या बोलना है, तो वो ट्रिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब मैंने एक बहुत ही लंबा सेंटेंस इंग्लिश में आपको बोल करके दिखाया था, द आइडिया वॉज कि उस टाइम पे मेरे पास एक्चुअली सब्सटेंस नहीं था, मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं बोल रही थी, बट मुझे ये मालूम था कि मैं ग्रामर सही रख रही हूँ और मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरी आंखें हिल रही हैं, और दूसरा मैं कुछ ऐसा ड्रॉप कर दे रही थी, उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो आपके साथ रेजोनेट कर रहे थे, यानी कि आप उन्हें सुनकर उनके साथ चले जा रहे थे, राइट? तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि मैडम ने भी बीच में अक्सर ब्रेक लिया है, या धीरे हो गई हैं, या हकलाई हैं। तो ये ट्रिक्स होती हैं जब आपको अपने आप को अच्छे से बोलना सिखाना है, वो ट्रिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? Now have conversations with yourself. Conversations in the mirror are a different story, but when you would talk to yourself. Vishnu Prasad, you have a pronunciation problem because my mother tongue is Chhattisgarhi. Okay, my mother tongue is Avdi. हम लखनऊ से आते हैं, और पर ये मैं कह सकती हूँ कि लखनऊ का तो तलफ़ुज़ इज़ वेरी गुड, यानी कि प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी गुड। लखनऊ तो बहुत साफ बोलते हैं लोग, एंड बट यार आपको काम करना पड़ेगा बेटा, फिर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ी आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने थोड़ी सुनी है, तो उसमें जी हाँ शब्दों को बहुत ही अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे श वगैरह का प्रोनाउंसिएशन उतना एम्फसाइज्ड नहीं होता है, बट वो आपको वीडियोस देख करके सुनना पड़ेगा कि श बोलते कैसे हैं। जैसे श बोलते वक्त आपकी जो ज़बान होती है वो ऊपर को उठती है, आपके तालू को टच करती है, पैलेट को, ठीक है, श, एंड यू पुश इट फ्रॉम विद इन, आप बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, राइट? ओके Manasa, you can speak in English, you understand English, but you are not able to speak in English. That is because you are telling yourself कि हम नहीं बोल पाएंगे, हमें डर लगता है. That's because you are holding yourself back. Now I was talking about having conversations with yourself. अपने आप से बात करिए. कैसे करेंगे? When you go to sleep, इंट्रोस्पेक्शन इस एक्टिविटी को बोलते हैं, दिन भर के बारे में सोचें, एंड ये एक्चुअली बहुत अच्छी आदत होती है। आप अंग्रेज़ी में सोचिए कि आज मैंने क्या क्या किया, गलत सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट ऑल डिड आई डू टुडे। अब ऑल को मैं बोलने लगी थी यहाँ पर आल,
आल का ये स्पेलिंग होता है, ऑल का ये स्पेलिंग होता है, और बहुत सारे लोग ऑल को आल बोलते हैं all day long. That's not good. We must work on our pronunciation. That is a very very important thing. ठीक है, नेक्स्ट, आपको जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना यार, इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं. जो आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, आपकी वो बुरी आदत भी छूट जाएगी. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट लाइक कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया है, मैंने किताबों के साथ कितना समय गुजारा है, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कितना टाइम गुजारा है, मैंने फ़ोन पे कितना टाइम दिया है, मैंने जेन्युइनली मेहनत वाले कितने काम किए हैं. 6 घंटे पबजी खेलना मेहनत नहीं होती है, ठीक है. मेरा अटेंशन स्पैन कितना अच्छा है. आप लोग एक्चुअली, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं लगातार 5 मिनट पढ़ाऊंगी, क्या आप पूरे 5 मिनट सिर्फ पढ़ सकते हैं? एंड दिस इज़ अ चैलेंज. मुझे जवाब देने के लिए अगर आप कोई काम करेंगे तो वो जो है वो सच हो सकता है या झूठ हो सकता है, बट आप अपने आप को जवाब देंगे व्हेन यू विल हैव कॉन्वर्सेशंस विद योरसेल्फ. थिंक अबाउट इट, दिमाग लगाएं, सोचें व्हाट ऑल डिड आई डू टुडे. एंड वाइल इंट्रोस्पेक्टिंग, अगर आपके पास एक जर्नल है या एक डायरी है और आप उसमें वो सारी चीज़ें लिखते हैं, इट्स गोइंग टू बी इवन बेटर. आप पहला सवाल पूछेंगे व्हाट ऑल डिड आई डू टुडे, ठीक है, ये सवाल आ गया. उसके बाद आप वन बाय वन यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को लिखेंगे. आई वोक अप, मैं उठा, ठीक है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, या आई वॉश्ड माई फेस, आई टुक अ बाथ, then I went to sit with my parents, then I started studying, then I gave 2 hours to English, I gave 10 minutes to maths. That's how I would do it. And similarly, हर चीज़, I studied overall for 2 hours but I played video games for 5 hours. Introspection यहाँ काम करता है. जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो उसी वक्त पे ये कंपेयर करना कि जिसके साथ पबजी खेल रहे हो, द पीपल हु आर प्लेइंग पबजी अलॉन्ग विद यू, वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं. आर दे सक्सेसफुल इन देयर लाइफ? आर यू सक्सेसफुल इन योर लाइफ? आर यू जस्टिफाइंग the expenses which probably your father is bearing right now? जो भी खर्चे आपके पिताजी अभी बेयर कर रहे हैं, उठा रहे हैं एट प्रेजेंट, क्या आप उनको जस्टिफाई कर पा रहे हैं बाय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? वो आपके कॉलेज की फ़ीस दे देते हैं, आपकी बाइक का पेट्रोल दिला देते हैं, या फिर आपके मेकअप का सामान खरीद देते हैं, बट क्या ये सही है कि आप उसके बदले में टिकटॉक बना रहे हैं या पबजी खेल रहे हैं? इज़ इट करेक्ट? और अगर जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में आपके पबजी पार्टनर्स भी हैं, आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द सिचुएशन कि ये पबजी जो है ये इसी स्थिति में पहुंचा के मानेगा. ठीक, तो कुछ भी करना गलत नहीं होता है. गेम्स भी खेलो, पढ़ोगे, खेलोगे, बनोगे खराब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब. ये बहुत पुरानी कहावत है, बट ज़रूरत से ज़्यादा अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है. Where do these people come from? यार, such cheapsters we have. Now look at this. ये पढ़ाई, ये एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन का आप यहाँ पर एक सबूत देख सकते हैं. बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं. ये मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप शीशे में खुद से बात करेंगे. सेकेंडली, सिंग अलोंग इंग्लिश सॉन्ग्स. जब आप अंग्रेजी गाने सुनेंगे आप उनके साथ गाने की कोशिश करेंगे. आप खराब गाते हैं तो आप बाथरूम में जाके गा लीजिए, पर आप गाइए ज़रूर. प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स. मैंने आपको बताया था ना, बेटी बॉटर बिटर करके कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर्स आपको मालूम होंगे. इस तरह से आप टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करें. हैव कॉन्वर्सेशंस विद योरसेल्फ, यानी कि खुद से बात करें, अपने दिमाग में अपने बारे में सोचें. ठीक है, आगे देखते हैं. लास्ट चीज, ये जो सब लोग करते हैं, डोंट टॉक एज पर अदर्स कन्वीनियंस, स्पीक एज यू वुड जनरली डू. दूसरों के हिसाब से बात मत करिए, आप वैसे बात करें जैसे आप यूजुअली करते हैं. कई बार अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और मैं एकदम से जल्दी जल्दी बोलने लग जाती हूँ, like start speaking very fast English, so what will you do? You will also come under pressure. You also try to speak at the same speed, which is not really your natural speed, or which you are not probably comfortable with. Then what do you have to do? The idea is you speak at the speed that you want to speak at. You will speak the way you want to speak. You will speak about the things that you want to speak. You will show me expressions that you want to show me.
आई एम नो बडी टू कंट्रोल योर कॉन्वर्सेशन. मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती कि जल्दी जल्दी बोलो या फिर एक पर्टिकुलर तरीके से बोलो, या फिर अब अगर आप थके हुए हो तो आप ऐसे बैठ के यही बोलोगे ना, आई एम वेरी टायर्ड. आई एम वेरी टायर्ड तो नहीं बोलोगे, राइट? सो दैट्स द होल आइडिया. सामने वाला कैसे बोल रहा है वो उसका लुकआउट है, आपको कैसे बोलना है वो आप डिसाइड करेंगे. आप अपने पेस पर अच्छी अंग्रेजी बोलने पर फोकस करें. ये जो प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं ना आप जानबूझ कर कि अरे यार ये बहुत सही बोल रहा है, इसके जैसा ही बोलना है, और फिर उसके बाद ही बेसिकली वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, वहीं से परफॉर्मेंस ख़राब फिर ख़राब फिर ख़राब होता चला जाता है. तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस ऑल बाय योरसेल्फ. अपने साथ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे यूट्यूब चैट्स में नंबर ड्रॉप करते नहीं घूमेंगे. संजीव नारंग नाम के यहाँ पर कोई इडियट आए थे, उन्होंने लिखा ओनली गर्ल्स आई वांट फ्रेंड्स टू टॉक, तो उनको उनकी गर्ल्स ही खाली फ्रेंड्स बन सकती हैं. बहरहाल आगे देखते हैं. यहाँ पर ये मैंने आपको एक सॉन्ग का एग्जाम्पल दिया था. ये है कोल्ड प्ले का गाना है. क्रिस मार्टिन आपके जो सिंगर हैं बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत मोटिवेशनल होते हैं उनके गाने. एंड इट्स यूजुअली समथिंग दैट यू विल कनेक्ट विद. अगर आपको बुरा लग रहा है किसी चीज़ को लेकर या आप बहुत खुश हैं तो आप इनके गाने सुन करके उनके साथ रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा, गाने गाइएगा. ठीक है. यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे पूछा है हाउ आर यू, ये यूजुअली सब पूछते हैं, इसका जवाब आप कैसे देते हैं? भास्कर वेरी गुड. अरुण कुमार क्या पूछा है आपने? आई स्टार्ट टू नहीं होगा, आई स्टार्ट टू स्टटर, टैटर नहीं. निक्कू कुमारी बहुत जल्दी क्लास शुरू होगी, अभी डेट. थैंक यू प्रमोद, यू लाइक्ड इट राइट, आई न्यू इट. हाउ आर यू का क्या जवाब देते हैं आप लोग? आई एम फाइन, फाइन, आई एम गुड, कैसे? श्रीराम ने लिखा है कैसे. श्री गणेश नायक, नो आई डिड नॉट ब्लॉक यू सरताज. अगर मैंने ब्लॉक किया होता तो आप कमेंट नहीं कर पाते ना. बजरंगी, मैं बहुत जल्दी टाइम का क्लास आपको. प्रिटी गुड, आई एम फाइन, ठीक है, आई एम ग्रेट, हाउ आर यू डूइंग? दिस is one of my regular students and one of my paid batch students, so now I know I did a good job. See, how are you का जवाब आप दे सकते हैं I am very well, what about you. देखो जब आप कहते हो I am fine, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मर्डरर. मर्डरर ऑफ व्हाट? अ कॉन्वर्सेशन. अगर आपसे किसी बहुत अच्छे दिखने वाले इंसान ने अचानक आकर के पूछा है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, और उसके बाद चुप, बात खत्म. डू यू वॉन्ट टू किल दैट कॉन्वर्सेशन? या अच्छे दिखने वाले इंसान को हटा दो. आपका बॉस आकर आपसे कहता है हाउ आर यू, और आप बोलेंगे आई एम फाइन. कॉन्वर्सेशन इज ओवर, ऑफिशियली ओवर. छुट्टी की घोषणा करते हैं इसके बाद आप. You don't have to do that. You have to take the conversation forward. I am very well. What about you? आप कैसे हैं? ये भी तो पूछ लीजिए. इसको कहते हैं manners, right? Sajal, first and the last time, do not use swear words. Yeah, that's not a good way to behave. अब मुझे लगता है स्पोकन इंग्लिश के साथ मुझे एक एटिकेट्स की क्लास भी निकालनी चाहिए. बहरहाल, वेयर आर यू फ्रॉम? अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ तो आप क्या बोलेंगे? Where are you from? What will you answer to this? Very good. Vijita, I am very well. Thank you for asking. इंग्लिश बोलना मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. क्या? ओहो, वेयर आर यू फ्रॉम, इसका जवाब कैसे देंगे? टाइगर, वेरी गुड, ही सेज आई एम फ्रॉम यूपी. आई एम फ्रॉम गोरखपुर. ओ वेरी नाइस. गोरखपुर तो मेरे घर से पास है. आई डोंट थिंक पास है वैसे, मतलब हमारे यूपी में है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. निकू, मी टू. आई एम नॉट रियली फ्रॉम दिल्ली दो. देखिए जहाँ से आप होते हैं. सुशांत कुमार इज फ्रॉम पटना एंड यू, वेरी गुड. एक तो आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन का मर्डर करना बंद कर दिया, विच इज़ एक्सीलेंट. वेयर आर यू फ्रॉम पूछा है तो आप कहते हैं आई एम फ्रॉम
पटना, लेट्स से आपने बोला पटना, ठीक है। आपने ये क्यों बोला? क्योंकि आप वहीं पर पैदा हुए हैं और वहीं रह रहे हैं। फ्रॉम आप तब यूज़ करते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपकी रूट्स हैं, जहाँ से आपका परिवार है, राइट? तो आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम पटना। लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे जैसे हैं, थोड़े से वैगबॉन्डिश, वो अब 2-3 इलाकों में रह करके आ गए हैं और अभी कहीं और रह रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं? एक तो अगर आप दिल्ली से ही हैं और दिल्ली में ही पैदा हुए हैं और दिल्ली में ही रह रहे हैं, राइट? तो आप क्या बोल सकते हैं? सिंपल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, व्हाट अबाउट यू, ठीक? या फिर एंड यू, ठीक? अच्छा, मेरे बारे में आप क्या कह सकते हैं या अपने बारे में? आई एम फ्रॉम लखनऊ बट आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2019। हूँ तो मैं लखनऊ से, यानी कि मेरी रूट्स लखनऊ से हैं, बट आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2019, 2009 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ, ठीक है। इलाहाबाद से हैं हमारे सरताज। किशन राम तांदी इज फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, I have never heard the name of this place, कुचरमान, really don't know the place. State बताएं ज़रा इसका, एंड या सिटी बता दें। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आप आंसर दे सकते हैं। What are you doing here? यहाँ क्या कर रहे हो? जब आप किसी को देखते हो, जानते पहचानते हो और वो अचानक से मिल जाता है, you always ask this question, यहाँ क्या कर रहे हो? इसको पूछने के 2 तरीके होते हैं। What brings you here? मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई आपका दोस्त आता है जो कि वहाँ पर पहले से नहीं पढ़ रहा है, उसका एडमिशन वहाँ नहीं हुआ है, बट वो आया है। या आपके ऑफिस में कोई आता है और आप उसे अचानक से देखते हैं, तो आप पूछेंगे What brings you here? यहाँ कैसे आना हुआ, ठीक है। तो इसका जवाब शिल्पा says born and brought up in Jharkhand, very good, yes। डर लगता है ना, तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि मिरर के सामने बोलें, टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करें, अंग्रेजी गानों में के साथ गाने गाएं, तो कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहाँ डरते किससे हैं हम लोग, मुझे समझ नहीं आता। हाय जीतू, वेलकम टू द सेशन। आपने नाम बदल दिया है फिर से। I came to study here. What about you? What a lovely answer, Kavya Rawat. Good job. यहाँ पर देखें, What are you doing here? यहाँ क्या कर रहे हो, और What brings you here? दोनों सवालों का जवाब आप कह सकते हैं या तो I am here to meet a friend, यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ, आई हूँ, या फिर आप कह सकते हैं I am here for an interview। देखो, किसी भी सवाल के जवाब देने का 2 तरीका होता है, या तो कट इट शॉर्ट, सिंपल रखो, ज़्यादा बातें मत करो, या फिर डोंट कट इट शॉर्ट, ओपन एंडेड आंसर्स दो, यानी कि जिसमें वो भी आपके साथ जुड़ जाएं। अगला आंसर कहता है आई एम हियर फॉर अ मीटिंग विद वीपी मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने आए हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही? कैसे इंसान है वो? और जब मीटिंग के लिए जाया करें तो पता कर लिया करें कि किस इंसान से पाला पड़ने वाला है, राइट? सो हियर फॉर अ मीटिंग विद वीपी मार्केटिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इज ही? कैसे इंसान है वो? ये ओपन एंडेड का एक एग्जाम्पल है, और ये वाले वो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा सबसे बात करने का शौक नहीं होता है। आई एम हियर टू मीट अ फ्रेंड, लीव मी अलोन, यानी मेरा पीछा छोड़े, मुझे बात नहीं करनी है, राइट? श्री गणेश, वेरी गुड। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर एक पूरी मॉक कॉन्वर्सेशन है जो कि बहुत जल्दी मैं करूँगी भी आप लोगों के साथ, बट फिलहाल मुझे सेशन वाइंड अप करना है। और आप लोगों को ये बता दें कि स्पोकन इंग्लिश का आपका जो पेड बैच है स्टूडेंट्स, वो store.adda247.com पर लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पर और स्पोकन इंग्लिश का ये बैच चेकआउट करना है। अभी के लिए ये बता दें कि अगर आज ही आप इसके लिए साइन अप करते हैं तो कोड लगाएं Y169 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 52% का, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 दिन के बाद यही काम करेंगे तो आपको सिर्फ 50% या प्रॉबेबली 45% का डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज डिस्काउंट्स कम होने वाले हैं। जिन लोगों को भी अपनी फ्लुएंसी इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो वो ये बैच ज़रूर चेकआउट करें। फ्री यूट्यूब क्लासेस इस बार सिर्फ 15 डेज़ के लिए होंगी आपकी, 15 डेज़ का आपका फ्री कोर्स होगा। लेकिन जिनको 30 डेज़ का कोर्स चाहिए, लाइव पेड बैच,
वो आज ही विजिट करें adda247.com, कोड अप्लाई करें Y169। आप लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जाते जाते इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक भी कर दीजिएगा। लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश समझ आती है पर वो बोल नहीं पाते हैं। सो इट्स टाइम वी हेल्प ऑल आवर स्टूडेंट्स और ऑल द पीपल आउट देयर हु कैन एक्चुअली गेट सम हेल्प फ्रॉम अस। ठीक है, सो ये रहा आपका 52% वाला ऑफर। आज ही विजिट करें adda247.com, अप्लाई द कोड Y169। ठीक है, मेरा नाम है उदिशा मिश्रा, हमेशा मेरे साथ कनेक्ट होना ना भूलें।